Hello, my dear students. How are you all? I hope you will find, and I welcome to science class for class 6. And today we are going to discuss the remaining thing of chapter 7, that is getting to know plants. Okay, so without wasting time, let's get started. So today we are going to learn about the shoot system. In the previous class we learned about the root system, and today we are going to learn about the shoot system. Okay, so what is shoot system? Okay, so the part of the plant above the ground. Okay, the part of the plant above the ground is called the shoot system. Okay, this shoot system consists of the stem. Okay, the stem. Okay, then the leaves, then the flower. Okay, also this later on this flower give rise to fruit. Okay, yes. So this shoot, okay, this shoot is developed from the plumule. What is plumule? Okay, so when you show a seed, okay, then it develop two things. One, it goes downside, and one it rise up upside. Okay, so the one which goes downside, that is called radicle, or a radicle later on develop into root. Okay, and the one which is go upside, okay, it is called plumule, plumule, plumule. Okay, and this plumule later on develop into the shoot. Okay, yes. Okay, so now this shoot, let's study about the stem. Okay, so this stem provide the main axis of the plant body. Okay, this stem, it provide a main axis of the plant body. Okay, yes, from which leaves and branches and flower they grow, they develop. Okay, yes, this stem has nodes and internodes. Okay, what do you mean by nodes? Okay, so the place on the stem, where leaves grow, okay, where leaves and branches grow, those points are called nodes. Okay, now what are internodes? Okay, so the place or the part of the plant between two nodes is called internodes. Okay, between two successive nodes it is called internodes. Okay, yes. Then, okay, yes, then the tip of the stem, okay, the tip of the stem is called apical or terminal bud. Okay, this is called apical or terminal bud. This apical or terminal bud help in the lengthwise growth of the plant. Okay, ये जो होता है ये इसको आगे बढ़ने में, इसकी जो हाइट बढ़ने में हेल्प करता है. अगर इसको आगे यहाँ से काट देंगे, ये बड को यहाँ से काट देंगे, फिर आगे ये नहीं बढ़ेगा. ओके, सो दिस एपिकल और टर्मिनल बड हेल्प इन द लेंथ वाइज growth of the plant. Okay, yes. Then there are some bud which arise from the leaves. ये जो लीव होता है, लीव्स होता है, इसके पास से कुछ बर्ड्स ग्रो करती हैं. इस बर्ड को बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड. ओके, यस. और ये जो बर्ड ग्रो करती है, ये लेटर ऑन इट डेवलप इनटू द ब्रांचेस. ओके, यस. देन द स्टेम इन हर्ब्स. ओके, जो छोटे छोटे स्मॉल हर्ब्स होते हैं, उसमें अगर हम लोग स्टेम देखेंगे, सो देयर स्टेम आर वेरी सॉफ्ट प्लस ग्रीन. ओके, वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और ग्रीन होते हैं. ठीक है, बट इन केस ऑफ श्रब, जो श्रब होती है, थोड़ी जो बड़े होते हैं, जो झाड़ियाँ होती हैं, जैसे कि रोजेस के जो प्लांट होते हैं, ऐसे जो श्रब होते हैं, उसमें हो सकता है कि वो ग्रीन हो या हो सकता है वो ब्राउन भी हो. ओके, और बट वो हार्ड होते हैं. ओके, दे आर नॉट सॉफ्ट, दे आर हार्ड. Okay, but in case of trees, okay, in case of trees, big trees, banyan tree, people tree, okay, all these trees, okay, these stem are initially green. जब ये काफ़ी छोटे होते हैं ये प्लांट, तो ये ग्रीन होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं ये ग्रीन हो जाते हैं और काफ़ी इनके साइज़ में बड़े हो जाते हैं. ओके, काफ़ी स्ट्रांग भी होते हैं ये, और इसको बोलते हैं ट्रंक. ओके, इसको बोलते हैं ट्रंक. बट कुछ स्टेम होते हैं जैसे कि ग्रेप्स के, जो काफ़ी वीक होते हैं, और ये ग्रीन होते हैं और काफ़ी वीक होते हैं. इनको स्टैंड करने के लिए किसी दूसरी चीज़ के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है.
ओके यस, सो ये हो गया स्टेम. So now we'll discuss the function of stem. Okay, what are the function of stem? Okay, so stem bear leaves, flower and fruits. Okay, stem is the part from where the leaves grow, the branches grow, then later on the flower and then fruit develop. Okay, yes, it act as a link between root leaves. Okay, who is connecting this leaf to the root? It is connecting the stem. Okay, who is connecting to the flower to the root? It is connecting the stem. Okay, yes, so it is the stem which connect the different part of the flower. Okay, yes, then young green stem perform photosynthesis. जो भी ग्रीन कलर के यंग स्टेम होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि वो खुद ही फूड प्रिपेयर करते हैं. ओके यस, then the other one is this stem, it carries, its transport, okay, the वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. ओके, जो भी वाटर और मिनरल जो सॉइल से जो रूट ऑब्जॉर्व करता है, इसको जो ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है वो कौन करता है? वो स्टेम करता है. ओके यस, और जो लीव्स में जो खाना बनता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, वो जो ग्लूकोज, वो जो स्टार्च, वो जो फूड होता है, उसको फिर डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाने का काम कौन करता है? ट्रांसपोर्ट करने का कौन काम करता है? स्टेम करते हैं. ओके यस, सो दीज आर द फंक्शन ऑफ स्टेम. Okay yes, let's move. There are some differences between stem and root. Okay, so we have already studied root. Okay, so अगर root देखें और stem देखें, दोनों का कंपैरिजन करें, तो हम लोग देखेंगे कि जो नोड्स और इंटर नोड्स होता है वो रूट में absent होता है, रूट में नहीं होता है, बट स्टेम में होता है. जो रूट होती हैं वो जनरली ब्राउन और येलो कलर की होती हैं, लेकिन जो स्टेम होती है वो ग्रीन कलर की होती हैं. ओके मोस्टली, एंड द रूट दे हैव नो लीव्स, नो बर्ड. ओके, बट स्टेम में लीव होती हैं, बर्ड्स होते हैं, फ्लावर होते हैं. ओके, जो रूट होती हैं वो जनरली जो ग्राउंड से नीचे ग्रो करती हैं, और जो स्टेम होता है वो जनरली ग्राउंड से ऊपर ग्रो करता है. ओके, सो दीज आर सम डिफरेंसेस, कीप इट इन माइंड. ओके, लेट्स मूव. देन लीफ. Okay yes, so if you look around so you will find a number or variety of leaves. Okay, yeah, different type, different shape, different veins. Okay, different number of leaves. Okay, then different edges of leaf. Okay yes, so you will find a variation of leaves. Okay yes, then yes, then the leaf. Okay, so leaf is a flattened structure. Okay, it is a flattened structure. Okay yes, okay, and this leaf arise from the stem. Okay, from the stem, node of the stem. Okay, जो node होता है stem का, वहाँ से जो leaf होता है वो grow करती हैं. Okay yes, तो जो ये flattened green color का जो part होता है, okay, that is called the blade. Okay, और लैमिना, LAMINA. ओके, लैमिना या ब्लेड बोलते हैं जो भी ग्रीन कलर का ये ब्लेड जो पार्ट है. ओके यस, देन इसके अंदर जो लीव जो होता है वो स्टेम से एक स्टॉक के थ्रू कनेक्ट होता है. स्टॉक के थ्रू उसको बोलते हैं पेटियोल. ओके, पेटियोल के थ्रू जो लीव होता है वो स्टेम से कनेक्ट होता है. ओके यस, देन इसमें कुछ ऐसे लाइंस होती हैं, इसको बोलते हैं वेन्स. ओके ओके यस, और इसमें एक मेन वेन होती है, उसको बोलते हैं मिड रिब. ओके, सो जो मेन वेन है उसको हो गया मिड रिब, जो बाकी है वो वेन हो गया. ओके यस, देन द एजेस दैट इज कॉल्ड द मार्जिन, देन दिस इज द टिप ऑफ द लीव इज कॉल्ड एपेक्स. ओके यस, ओके यस, then this arrangement of veins. Okay, this arrangement of veins, किसी में veins ऐसे होती हैं, जालीदार होती हैं, नेटवर्क होता है इनका, ऐसे स्क्वायर्ड या ऐसे नेटवर्क होता है. ओके, नेट जैसा हो जाता है. ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ वेन्स इज कॉल्ड रेटिकुलर. ओके, रेटिकुलर वेन्स. ओके, RETICULAR, रेटिकुलर वेन्स. ओके यस,
like in mango, in rose, okay. But in some plants like banana and grasses, these veins are parallel, okay, and therefore they are called uh, parallel venation, okay, venation, okay. What is the venation? VENATION, venation, okay, parallel venation and reticular venation, okay. Yes, okay. Later if we स्टडी, ओके, अगर हम आगे डिटेल में देखते हैं, सो हमको एक रिलेशन मिलता है रूट में और लीफ में, ओके. क्या रिलेशन है कि अगर कि जिस प्लांट के लीफ में वेन्स पैरेलल हैं, तो उस प्लांट की जो रूट होगी वो होगी फाइब्रस, ओके, लाइक मेज लाइक बनाना, ओके. यस, सो जो भी मोनोकोटिलडॉन होते हैं जिसके सीड में एक ही पार्ट होता है, उसकी जो लीव्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं और उसके जो रूट होते हैं वो फाइब्रस होते हैं, ओके. यस, जो डाइकोटिलडॉन होता है मतलब जिसके सीड में दो पार्ट होते हैं, जैसे कि चना, जैसे ग्राम, जैसे मैंगो, ओके. सो इनके जो लीव होती हैं वो नेटवर्क वाली होती हैं, इनकी जो वेन्स होती है वो नेटवर्क वेन होती हैं, ओके, यानी रेटिकुलर वेनेशन होता है. और इनकी जो रूट होती हैं वो टैप रूट होती हैं, ओके. यानी मतलब कि अगर हमें फाइंड आउट करना है कि रूट इस प्लांट का कैसा है, तो उसके लीव्स को देख के हम लोग उसके रूट को पता लगा सकते हैं कि अगर रेटिकुलर वेनेशन है तो टैप रूट होगा, अगर पैरेलल वेनेशन है तो फाइब्रस रूट होगा, ओके. यस, देन द लीफ फंक्शन. व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लीव्स? ओके, सो लीव्स हैव टाइनी पोर्स, ओके. जो लीव्स होता है उस पर छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, ओके. उसको बोलते हैं स्टोमेटा, ओके. यस, स्टोमेटा के हेल्प से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस होता है, मतलब कि ऑक्सीजन ये लोग लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं ड्यूरिंग देयर रेस्पिरेशन, एंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस दे टेक द CO2 बैक एंड दे गिव राइज टू O2, okay. Yes, then these leaves manufacture the food by the process of photosynthesis. तो ये जो लीव्स होता है इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल. सो क्लोरोफिल के वजह से इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, ओके. और यूजिंग दिस क्लोरोफिल यूजिंग वाटर और सनलाइट, ये अपना फूड मैन्युफैक्चर करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ओके. यस, और जो एक्सेस वाटर होता है इट थ्रो इट आउट फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ वेपर, जो वेपर के फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में इसमें से इवापोरेट हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, ओके. सो दीज आर द सम फंक्शन ऑफ लीव्स, ओके. यस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. यू हैव सम क्वेश्चन? इफ एनी पार्ट you didn't understood, please ask, okay. And try these questions to solve. What are the write the importance of leaf in plant, then write the importance of stem in plant, okay. And then what is the relation between leaf venation and root type, okay. Yes, so try to answer these things, okay. Thank you so much. Keep studying. Bye bye.